and they want of, लेकिन बच्चों के लिए कुछ करेंगे जो आप सोच रहे हो। एक मास्टर माइंड क्लास मैंने 16 तारीख को सोचा 4 hours की, where I will bring everything in one go. अरे भाई हमारे बच्चे डिफरेंट तरीके के हैं। कोई नहीं, उनको तो होता है कि बस फटाफट 28 days नहीं चाहिए, 1 day or 2 days, that's it. तो लेट्स सी, मैं तो आई एम इन, सौम्या का तो पता नहीं मुझे। चलो ग्रेट। हाँ आई एम इन। Good evening, sir. गुड इवनिंग। कैसे हैं सर? बस बढ़िया। बढ़िया ही रहना चाहिए। ये देखो मैंने छोटा सा, ये मेरा वो है लाइट प्रोविजन, ये लगा रखा है मैंने। ये थोड़ा सा होता है, बाकी मेरे कमरे की लाइट अच्छी थी, अब थोड़ा सा कम हो गई है, पहले काफी अच्छा आता था, लेकिन इससे इतना फर्क पड़ता नहीं है, बट बेटर है। $50 का एलईडी लगा दो आप। गुड इवनिंग दीदी। गुड इवनिंग ज्योति, कैसी है? गुड गुड दीदी। ग्रेट ग्रेट। Ma'am, you're still glowing. Oh, I'm still Yes. Yes, ma'am. You're looking so fresh. I'm always fresh. आप मेरे को मॉर्निंग Yes. में मिलो, शाम को मिलो, दोपहर I को know. मिलो, 10 घंटे बाद मिलो सेशन के, मैं आई एम ऑलवेज द सेम वे। Yeah. मेरे सेशंस का मेरे इवन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी मेरे साथ ये होता है कि मैम आप, हम थक गए, आप बोलते हुए नहीं थके हो। मैंने कहा जी फर्क है। मोटिवेटेड मोनिका में बाकी में इतना तो फर्क है ना। जी जी। So Good evening, ma'am. Good Good evening, evening, everyone. Anjali. How are you? I'm good, ma'am. आप बताओ। Good. So how things are going? तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? And what is the सब problem? बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है मैम। Wonderful, very nice. I'm happy for you. Great. Thank Good you. evening, Jyoti. Good evening, Lalita. Good evening, Manvi. Good evening, Anjana. Good evening, Ashneet, Kinnari, Neeru Didi, Vimmi. Good evening, all of you. गुड इवनिंग मैम। Good evening, Monica. Good evening. Kinnari, वहाँ पे क्या टाइम है इस टाइम? अभी 10:30 बजे मैम। रात के, सुबह के? हाँ जी, रात के। वाओ, गुड। हाँ जी मैम। हाँ नहीं, बच्चे अभी सोने आएंगे, अभी यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है ना। हाँ ओके। तो वैसे चल रहा है, फिर थोड़ा रिलैक्स होते हैं, सवेरे स्कूल हाँ, का ये थोड़ा स्टडीज सा होता है। रिलैक्स होता है। हाँ, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो चलो फिर थोड़ा प्रेशर रहता है कि बच्चों को भी सुलाना टाइम पे, तो सुबह जाना है, बट लॉकडाउन इज देयर। हाँ। स्टेटस क्या है लॉकडाउन का वहाँ पे? अभी तो स्टेज 4 पे चल रहा है ना मैम, तो एवरीथिंग इज क्लोज्ड अपार्ट फ्रॉम ओनली द एसेंशियल्स, वो भी रात को 8 से सवेरे 5 कर्फ्यू हो जाता है। हाँ तो अभी नंबर्स भी जैसे लास्ट वीक तक 700 से ऊपर हो रहे थे, अभी थोड़े कम होने लगे हैं, बट डेथ्स बढ़ने लगी है। थिंग्स आर एज सच कंट्रोल में, बट कंट्रोल में नहीं भी है वैसे। नीड टू बी केयरफुल, दैट्स इट। मेन बात तो केयरफुल रहने हाँ, की। गुड exactly. इवनिंग विक्रम। Good evening, ma'am. हाउ आर यू? I'm good, ma'am. थैंक यू। I should say thank you, ma'am. Gratitude for 28 days. Yes, gratitude to 28 days. Wow. Very true. So, who is ready to read? आज संगीता नहीं आई, Monday है। चलो, anyway, not a problem. We can start. मैं करूँ? बिल्कुल, most welcome. Okay. Okay, so let us start gratitude. First prayer करनी चाहिए. Thank you.
Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you, universe, for giving me this beautiful day. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for giving me this beautiful moments. Thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for giving me this beautiful magical session. Miracles are happening in my life. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, God. Thank you so much, world. Thank you so much, universe. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe. We thank all the doctors, all the nurses, all the staff members of hospitals as they are taking care of all the patients and for their well-being. We sprinkle magic dust to each and every hospital. Whatever hospital you know, just think the name of the hospital and sprinkle magic dust to all the patients of that hospital. Imagine the golden magic dust is going to the hospital. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe, for giving me wonderful parents. They have given me a comfortable life. They had made me what I am today. Thank you so much, God. Thank you so much, universe. Thank you, thank you, thank you. Thank you for giving me wonderful siblings, my brothers, my sisters. They love me, they take care of me, they support me. Thank you so much, God. Thank you so much, universe. Thank you, thank you, thank you. Thank you for giving me such a beautiful house, the different facilities that I have, AC, furniture, Wi-Fi, laptop, everything, whatever you have given me. I'm so grateful to you. Thank you, thank you, thank you. Thank you for giving me that comfortable lifestyle. Thank you so much, God. Thank you so much, universe. Thank you, thank you, thank you. Thank you for my health. My cells are healthy. My systems are healthy. I'm active, fit, and strong. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you for all my failures. They are giving me different lessons and I'm learning each lessons and going at the right path. Thank you so much for upskilling me. Thank you so much for taking me, growing me, taking me up. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe, for the way I am not. Thank you so much. I am the best and whatever decisions I take are in the best way. Thank you, God. Thank you, universe. I love you, God. I love you, universe. Thank you, thank you, thank you. Blessings to all. Great. एक बहुत अच्छी मेरे को पोएम मिली है. Dear God, I know that I'm not perfect. I know sometimes I forget to pray. I know I have questioned my faith. I know sometimes I lose my temper. But thank you for loving me. Thank you for guiding me. Thank you for protecting me. And thank you unconditionally giving me miracles day by day, every day. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Beautiful. Yeah. So a grateful heart is a magnet for miracles. So when we make our, when we show gratitude, we come closer to the miracles. So everyday miracles are happening in our life and we are accepting it. So how many of you did the yesterday's work, that is mirror work? जब भी आते जाते मिरर में काम करना था, और अगर ये उसने चैलेंज दिया था किताब ने, अगर आप में गट्स है, अगर आप में करेज है, so you will talk about 3 good things about yourself. How many of you did it? Ma'am, I did. Wonderful. So any experience of yours? I felt good because I'm sure you know that self-love is very less in me. So yeah, I can feel it. I do actually have started to do that during our sessions only. I used to look at myself and say, you know what, you're pretty. Ah. And yeah,
and not just pretty. I've started to be grateful about myself. So yeah, I'm doing that, and I can actually feel happy, and I feel a positive change through that. Good. And it's very difficult to look at myself in the mirror for more than 1 minute. It definitely is. Keep But doing it. You will yes, increase the ma'am. time. You will definitely would be able to increase the time. But keep Yes. looking at it. Thank you. Thank you so much for taking it on. You know, you are taking charge of your own life, which is a really, really good thing. You know. Thanks to you. Thank And you. thanks to everyone present here. Because Yes. everyone is bringing their own positive energy in this. Yes. So thanks. Whatever to you. is happening in these classes is the space provided by all of you. It is you are also contributing, they are also contributing. So it is just because each one of us who's creating this, and magical journey is happening miraculously really, really well in each and everybody's life. Yes. Who else would like to share? Jyoti, I did. Wonderful. Yatish sir, I did. Great. Wonderful. I did the practice, Monica, and I felt there is growth in self-love which was missing. So that was very important for me. Thank you. And there was one small health issue, boil सा हो गया था, which was making me difficult to sit. Okay. So वो मैंने उसको भी heal करा, and I मतलब उसको बोला I love you, और फिर वो मतलब within 1 day it just vanished. I'm so surprised. तो बिल्कुल ठीक है. Very nice. Very, very Yeah. nice. You yourself is a healer, you know, so you just give gratitude, and if you are a doctor yourself, you can, you know, heal yourself that way. Anybody Yes, else would like to share anything? Good evening, madam. Good evening. आगे कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ गुड इवनिंग होनी है. नहीं, मैं अभी आई हूँ तो अभी देख रही थी. Okay. Got it. So, Nitesh ji, good evening, and बाकी सबका Good evening, madam. Good evening, Dr. Good evening, JP. Good to see you all here. So let us start. मैम मेरे पास तो मैंने तो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि मैं अब जब से इस मैजिक में आई हूँ और मेरे में इतना ज्यादा चेंज आ गया है, तो ये जो सेल्फ लव वाली प्रैक्टिस है ये तो मैं अब कर ही रही थी काफी टाइम से. तो मतलब कि अब मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जो मर्जी बोलती है बोली जाए, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं है. आई एम गुड. मैं अपने में खुश हूँ. मेरे पास किसी कहते ना कोई नेगेटिव चीज के लिए टाइम नहीं. और एक चीज आपको मैं बताऊं, कल रात मुझे ना नींद नहीं आ रही थी. अराउंड 1 o'clock or 12:30 or 1 o'clock. I had a thought in my mind. और एकदम से ना मुझे वो आया एक टॉपिक, I'm allergic to negativity, है ना. और आपको मैंने ये टॉपिक लिख के ना वहाँ पे लिंक्डइन में अपना पोस्ट कर दिया. Very nice. Very few people do that, you know. Very few people, the idea come and they just shoot it. No matter whether everybody likes it or don't like it, at least you have expressed yourself. और मुझे मैम बहुत लोगों ने लाइक किया, सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ, पर मुझे ये सबसे है कि मेरे को आधी रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी. मैं अपने मतलब यही चीजें सोच रही थी सारा कुछ, हाँ कि मेरे टच वुड ये है. और एक चीज मैंने और अपने उसमें की, कल परसों ना आई वाज थिंकिंग समथिंग, उसमें जैसे थोड़ा सा अब हम ह्यूमन बीइंग है, कभी आ जाता है कि कैसे है ना, कि ऐसा कोई नेगेटिव थॉट जैसे मुझे लगा कि आने वाला है, मैंने ना ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया. 5-10 minutes I'm just saying thank you God, thank you universe, thank you. मैं यही बोलती गई कि वो आए ही ना नेगेटिव. तो मैंने इवन जस्ट को भी ये बताया. मैंने कहा कहती क्या कर रहे हो आप. मैंने कहा नहीं बस मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे को भी 5 मिनट बुला मत, मुझे करने दे. मेरे आसपास भटके भी ना कोई ऐसी चीज. मैंने वो 5-7 minutes मैंने अपना वो रेगुलर में बोलती रही ताकि वो मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीज आए भी ना. और कल रात को फिर ये टॉपिक मेरे को ऐसी नींद नहीं आ रही थी, कुछ नहीं आया, ऐसे मैंने देखा तो मैंने सोच रही थी सारी चीजें और मेरे को मन में ऐसे ही आया. एक पहले हेडिंग आई
फिर मैंने वो लिखना शुरू किया, फिर सारा वैसे ही लिख के उसी टाइम पोस्ट कर दिया रात को। कितने लाइक्स मिले? मैम अभी तो लाइक मेरे भी ज्यादा वो नहीं है ना, फिर भी आई हैव लाइक 10 लाइक्स। ओ, एक रात में इतने लोग एक्टिव हैं कि आपका आर्टिकल पढ़ लेते हैं भैया। हाँ जी, वेरी नाइस। और व्यूज भी काफी हो गए हैं। तो और वो जो मेरा फ्रेंडशिप वाला था ना, एक जो मैंने लिखा था, आपको भी बड़ा अच्छा लगा था। आई गॉट ऑलमोस्ट 200 प्लस वाओ, यस, व्यूज उसमें। द पावर ऑफ योर राइटिंग। तो इसीलिए कल से मैंने भी जैसे आई शेयर्ड इट विद यू, आई डिक्लेयर दैट आई विल बी राइटिंग एवरी डे। तो कल रात को सोने से पहले लिखा, कल रात को लिख रही थी, फिर आज मॉर्निंग में बैठ के भी मैंने जब लिखना शुरू किया, तो so many things I got to know, you know, when you write, इतने सारे आइडियाज हाउ टू प्रमोट माय जो प्लान मैं बना रही हूँ अपने प्रोग्राम्स को लॉन्च करने का, और वो so many ideas came up and I was completely engrossed into my, मेरा एक वेबिनार भी 12 तारीख को है, तो I was thinking कि मैं उसको कैसे प्रमोट कर सकती हूँ, किस तरह से कर सकती हूँ. So I was thinking and I was writing and I'm so happy कि I'm able to create those strategies, you know. दिमाग अपने में बहुत है, इतना मुझे पक्का पता है कि I have a very beautiful, you know, I have a very intelligent, beautiful mind, you know, and it works very, very sharp. यानी you tell me once one thing, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी. I'm a very good driver. एक रूट से अगर मैं निकल जाती हूँ ना, मुझे दोबारा किसी को याद नहीं दिलाना पड़ता कि यहाँ घर था या वहाँ घर था. तो I'm very good in, you know, observation and all those things, you know. How it's grace of God, I'm like that, and very, very innovative, different ideas. और मैं, and to one extent I'm a perfectionist as well, कि मुझे काम छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा पसंद नहीं. I don't like cutting corners. If you commit, please do it, do or die, do it. तो मेरे लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक इंसान का एक करेक्टर, एक इंसान का वर्ड, एक इंसान की सोच, उसकी जो हैबिट्स होती है उससे झलकती हैं. Whatever you are saying, वो कहते हैं ना यार, he is a man of words, my God, दुनिया पलट जाएगी पर उसकी आवाज नहीं पलटेगी. पहले जमाने में ऐसे ही लोग हुआ करते थे, because when they used to say, अब बताओ पुराने जमाने में ऋषि मुनि कुछ किसी को श्राप देते थे, वो श्राप से मुक्त होना मुश्किल हो जाता था. रीजन बीइंग they were always truthful. They were always truthful. जब वो ट्रूथफुल रहते थे ना, तो वो कभी उनके माइंड में किसी का नेगेटिव होता ही नहीं था, और अगर होता था तो फिर वो तो इतना भयंकर होता था जिसका कोई तोड़ नहीं. और जबान पे सरस्वती बैठा करती थी. आज के जमाने में हमें पता ही नहीं, हजारों बार हम किसी की बुराई करते हैं, हजारों बार पता नहीं ये कर, हमारी वर्ड्स की वैल्यू खत्म हो गई. इफ वी कीप ये लैंडमार्क में सबसे अच्छी चीज जो हमने सीखी थी ना, दैट इज अ कमिटमेंट. कमिटमेंट मीन्स when it is 6 o'clock, you have to be 5:59 पे पहुंच जाओगे. 6 o'clock नहीं होने दोगे. अगर 6 बजे होता था तो you have to restore your integrity. That comes on your integrity. इतनी अच्छी चीज सुनी थी हमने, मतलब हम लोगों ने. मैं ये नहीं कहती ब्रेक डाउन नहीं होते, ब्रेक डाउन भी होते हैं, बट इमीडिएट कम्युनिकेशन, इमीडिएट ये चीज, मतलब ये चीज अगर हम अपनी जिंदगी में ले आए, दिस नथिंग बट अ सेल्फ डिसिप्लिन. एंड जितने भी टॉप के बंदे हैं, नेम, फेम, पैसा है, उनका सेल्फ डिसिप्लिन इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ देयर लाइफ. वो कुछ करें या ना करें, इफ दे आर गोइंग टू गेट अप एट 4, दे गेट अप एट 4. वो बैठे रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे, और किताबें पढ़ने का उनको इतना शौक है, इतना शौक है, इतना शौक है, बता नहीं सकती. मतलब यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ बाय रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स. वो कहते हैं कि जो बहुत बातें करता है ना, शोर मचाता है ना, उसमें नॉलेज कम होती है. वो कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना. अब एक लोटा है, लोटे के अंदर कुछ नहीं, एक आपने सिक्का डाल दिया तो बहुत तेज आवाज आएगी उसकी, बहुत तेज आवाज आएगी. बिल्कुल. बहुत सारा चीज भरा होगा, उसकी आवाज बहुत कम आएगी. सो बी दैट लोटा which has got lots of knowledge and you speak less, but your work shows how much you are performing, how much you are going ahead with it. So that word की जो अपने words की weightage आप ही बढ़ा सकते हो, कोई और नहीं बढ़ा सकता. So please remember always the commitment words is your commitment means आपने एक बात,
हम कई बार बातों बातों में अपने बच्चों को भी बोल देते हैं, अच्छा कल मैं तेरे को वहां लेके चलूंगी, अरे मैंने तो मजाक किया था, बट बच्चे फिर आपके वर्ड को वर्ड नहीं समझेंगे. सो दिस इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम एज अ पेरेंट बहुत गलती करते हैं. अगर हमको ये कहते हैं ना कल मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगा, प्लीज मेक श्योर, फिर उसके बाद बच्चे के माइंड में आएगा मेरे पापा ऐसे हैं, एंड दे मेक श्योर कि दिस इज व्हाट इट इज. So this is a very, very important thing. So that is what commitment is a commitment. Self-discipline is a self-discipline. So that you need to make sure that this is happening. This you keep it on, you know. और ये हमें हमारे leaders ने ये बताया था, अगर if you be on your words, if you go on doing the things what you speak, जिस दिन आप खड़े होके मुंह से चेयर भी बोल दोगे ना, ऊपर से चेयर गिर जाएगी, इतनी जबरदस्त कमिटमेंट की वैल्यू है. बट इफ यू स्टार्ट टेकिंग द वैल्यू, अगर आज से आप ये प्लेज लेते हो, वी विल स्पीक, वी विल डू व्हाट वी स्पीक, वी विल बी मैन ऑफ आवर वर्ड्स, मैन ऑफ आवर एज अ मैन ऑफ पर्सन, यू नो. आप देखोगे आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मिरेकल्स, ये तो मैजिक तो है ही, इसके बावजूद भी अपने आप ही चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी. बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच stops the growth, you know. when हम बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन हम करते नहीं है, उस वो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेगेटिविटी. सो व्हेन वी रियली वांट टू रेज आवरसेल्व्स, वी नीड टू रिमूव दोज नेगेटिविटी अराउंड अस, यू नो. बोल दिया हमें पता नहीं, बोल दिया हमने 4 बजे बोला हमें पता ही नहीं, हमने मैं ये नहीं कहती है एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि हर बार ही कमिटमेंट होगी, बट एटलीस्ट इफ यू टॉक इन एडवांस कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज ये, and you are intimating the other person so that other person is not waiting. So that is the weightage of your word. So just make this practice as a self discipline, start with it, and you will see the things happening in your life. Okay, great. Anybody has to share anything else? इसी चीज पे एक चीज है, जैसे आपने बताया ना कि अगर हम बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चों के, अगर हम जब बच्चों को बोलते हैं ना कि अब जैसे मेरे साथ होता है, मैंने ये चीज नोट की कि मैं अगर जस को कहती थी कि जस मुझे कहती है कुछ नहीं हम कल चलेंगे, तो बच्चा ना वो अपना माइंड सेट कर लेता है कि आज तो हमने करना ही करना है, ये तो जाना ही जाना है. और उस पर नहीं जाओगे तो वो बच्चे का भी मूड ऑफ होता है, फिर वो ये भी कहता है कि ये तो अपनी बात पे रहते ही नहीं है. तो मैंने ये पहले, आपकी ब्रांड वैल्यू आप खुद बना रहे हो, आपकी जो पर्सनालिटी आप खुद बना रहे हो, व्हाट यू आर मेकिंग. अभी जैसे आप बोल रहे हो कि अब मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है, बट आपको कल जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक थी, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड. when subconscious mind and conscious mind meets, you know, then manifestation happens, then you start attracting to things, you know. अब आपके कॉन्शियस माइंड को समझ आना शुरू हो गया है. द मोमेंट यू स्टॉप योर प्रैक्टिस, सबकॉन्शियस माइंड तक अभी वो नहीं पहुंचा, वो तब तक पहुंचेगा थोड़ा टाइम, जब आप करते रहोगे सबकॉन्शियस, अरे कुछ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उसको सिग्नल जा रहा है, जाता है. जब रेगुलर करते होगे तो ऑटोमेटिकली subconscious mind accepts your conscious mind, and then you know that habit is created. It's that way. So इसीलिए कल मैंने वीडियो शो करने का मकसद ही मेरा ये था कि कीप प्रैक्टिसिंग. 1 महीना कुछ, 28 दिन कुछ नहीं होते हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस. डोंट गिव अप राइटिंग योर ड्रीम्स, डोंट गिव अप राइटिंग योर ब्लेसिंग्स. इमेजिन करो ये ब्लेसिंग्स जो आप लिखते जा रहे हो, कितना ज्यादा गुड फॉर्चून क्रिएट होता चला जा रहा है. सो प्लीज डोंट स्टॉप कि अगर क्लासेस खत्म हो गई हैं तो हम आगे लिखना बंद कर देंगे. डोंट डू दैट, बिकॉज यू नेवर नो कब इसकी मैनिफेस्टेशन कब क्या हो जाए. सो कीप डूइंग इट. एक्स्ट्रा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट आई रियली हैव टू से. थैंक यू सो मच. सो लेट अस स्टार्ट. Anjana, I am putting the book on. Yeah. I want to say something. Who's this? Jata. Yeah. Actually, मैंने ना काफी टाइम से अपने वीडियो अपलोड नहीं किया है ना YouTube पर, तो मैंने एक्चुअली आज ही डिसाइड किया था कि आज से मैं कंटिन्यूअस जो है अपलोड करूंगी, और आज आपने डिसिप्लिन के ऊपर टॉपिक बता दिया. So this was. आपका म्यूट हो रखा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मैंने कहा मुझे पता चल गया था तू क्या सोच रही है दिमाग में. Yes, great. So Anjana, you can start with it. Okay. So it says your magical future.
इसके बाद मोनिका, okay, you are the builder of your life and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. The ideal way to move forward from here is to maintain, maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give it as a guide. 3 days a week of Remember the Magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, magical relationships on the second, and magic money on the third day. 4 days a week of Remember the Magic or incorporating it with 3 other magical practices of your choosing will maintain your gratitude and accelerate the magic. 5 days of or incorporating it with 4 other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstance of your life. 6 or 7 days a week of Remember the Magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing will dramatically increase your happiness and the magic in every area and circumstances of your life. 6 or 7 days a week of Remember the Magic or incorporating it with any other magical practices of your choosing. And you will become the true alchemist who can turn everything into gold. Magic practice recommendations. To keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices of each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you're unwell, you will want to do magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. The following recommendations will easily guide you towards the magical practices that will have the strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant areas for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. Relationships. The chapter actually I was wondering कि हो क्या रहा है वो, that is the last chapter, this is the magic वाला Remember the Magic. अब ठीक है। The- मैं इस चक्कर में बेचारा से मेरे से कंफ्यूज हो skip गया। हो गया
हाँ मैं तब से सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार मैंने मिस कर दिया, लगता है मैं एक दिन लेट हो रहा हूँ। मैं सोची जा रही हूँ कि मैंने स्लाइड मैं बेचारा, अब पता है तुम्हें मोनिका अपना मैसेज देखो, मैंने लिखा यार मैं लास्ट चैप्टर बोल पढ़ना चाहता था, शिट मेरे को ये कैसे गलती हो गई काउंटिंग में कि मैं लास्ट वाला दिन देखो मैसेज किया मैंने, भाई आखिरी वाला मुझे पढ़ने दो। आखिरी वाला तो कल है ना, वो कल पढ़ियो। हाँ अरे तो मेरे को तो आज हो रहा था ना, मेरे को लगा पे ये क्या हुआ, मैं आज बोलने वाला था, आपको रिक्वेस्ट करने वाला था और आज ही हो अनमोल गया फिर। अनमोल मैजिक हो गया तेरे साथ। देख अभी इसको थोड़ा सा वो झटका लगा दिया इसको। चलो नहीं, वो स्लाइड में मैंने नहीं लिखा ये सब। ओके, आई एम रियली सॉरी। No, that's okay. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. So when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice of your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. And as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answers. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. There is no set number of blessings to find from yesterday, because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life.
and your life will be abundant and magnificent. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic. It was created for you. Magic practice number 28. Remember the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the questions. What are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. As you remember each one, simply say the magic words, thank you, for it in your mind. After today, you can do this practice as a written list, or out loud, or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Thank you for creating a wonderful chapter. Thank you for giving me this opportunity. Most welcome. Thank you, and thank you, Ajna, for reading it so beautifully. 2 times. Thank you, Anjana. I know. Thank you so much. Okay. मैंने तुम्हारा भी चैप्टर चुरा लिया. नहीं, मेरा नहीं चुराया. मेरा भी शुरू नहीं हो पाया था. मेरा चैप्टर था मैजिक नेवर एंड्स, लास्ट बिल्कुल. ओके. तुम अगर वहां पहुंच रहे होते, बॉर्डर को छू देते ना, बॉर्डर को, तो अभी यहाँ पर मैं वॉर क्राई छोड़ देता. अंजना मैं आ रहा हूँ. मैं वेट कर रहा था तुम वहां पहुंचो और मैं छोड़ूं बिल्कुल करंट यहाँ से. Okay, remember the magic. That's the thing with magic. You have got to know it's still here around us, or it is just stays invisible for each one of us. So we are creating magic every day, and Sangeeta ne karna tha, chalo. Now every day is unique. Good things that happened yesterday. News हो सकता था, unexpected money होगी, कुछ phone call होंगे, favorite food खाया होगा, meeting में गए होंगे, quality time attend किया होगा. But the most important thing is the gratitude that needs to be shown. तभी magic create होता है. चलो अब आपको बड़ा सुंदर सा वीडियो दिखाती हूँ मैं, which is directly connected to this. ये हुई ना बात. Okay. I started to do that and some of the other things that he taught me. And 4 days before we left, he taught me the power of my, and 4 days before we left, he taught me the power of my mind and how if I understood the mechanics of it and how it all worked, I could create what I wanted in my life. These amazing tools have been around for millenniums. Monks have been using it for thousands of years. You're not the mind, rather you're pure awareness moving through different areas of the mind. If you understand the mind, right, it works on pattern, right? Because right now my mind is shaped like this. And if I want to go to the next version of me, I need to break this, right, that mold, and then heat it up and then remold it again. And that process of breaking in order to reshape it is where I go, this is really difficult, this is painful, I don't ever want to do this. And then it needs to reshape again. And then you get comfortable, the mind gets comfortable with being in its new shape, version 2.2. And then to get to 2.3, you need to break that shape again. And that's when you go like, oh, this is difficult, this is crappy. I think I should stop. And then it needs to remold again. And that's the part of growing, right? And you just realize after a while that
every time you move yourself to the next best version of you, you're going to go through that process of everything in your body readjusting. The patterns in your mind need to break and adjust. Your nervous system in your body is comfortable now with how life is currently. But if you want to go to the next version of you, it needs to adjust everything. Your muscles, your body, your nervous system needs to adjust to the next version of this. So you taught me how the mind works. You taught me about the power of affirmation, which we talked about on the previous episode, and how by using affirmation, I could create in my mind and shape my mind to attract the things I wanted into my life. But you have to understand, and then you have to have the desire, and that's how we train me. And now you have that affirmation practice that you can use. Yeah, to manifest. Yes, exactly. And you do affirmations a bit different. You gotta have 3 things that you do that makes them special. Concise choice of positive words, clear visualization, and feeling. And feeling being the most important component, because feeling is emotion, and emotion is energy, and energy is magnetic. Tesla had the saying, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. I think Tesla is an amazing human being, and I think he was more like a mystic scientist than anything else. And if I were to elaborate on that statement, I would say that everything is made up of energy, and that energy is vibrating at a certain frequency. And your job is to match the frequency of what you want, because that's harmony, right? And the same way that if you want to attract something in your life, you need to understand what that frequency is that you want, and then change the energy in your body to match that frequency. And when you do, you attract that. It's like the old radios, right? You tune it, the station is 74.5 FM, and if you get to 74.4 FM, you get static and music. 74.6, static and music. 74.5, perfect music. 74.2, to static. So your goal is to tune your energy to match the frequency of what you want. And then that's when the attraction comes. And a lot of people talk about this law of attraction and stuff, but they don't really understand it or explain it properly. And I think sometimes the New Age world can just get away by saying all kinds of, the law of attraction, and do this, and do that, and it'll attract it into your life. But there's no practical steps of actually understanding the science of how these things work. But once you really understand it and put the hard work into it, these amazing tools have been around for millennia, and monks have been using it for thousands of years. Concise positive words. Concise positive words. Clear visualization. Clear visualization. And corresponding feeling. Right? The feeling is emotion. So when I say corresponding feeling, if you want something, you need to match the frequency of what you want. So remember what Tesla said, think in terms of energy, frequency, and vibration. Right? Everything is made up of energy, and that energy is vibrating at a certain frequency. So if I want to be in harmony with you, I need to feel how you feel. And how does Brian sit, and how does he talk, and how does he stand? It's same like actors, that's what they do, right? Actors, somebody needs to play Cleopatra or King Richard or whatever it may be. They try and feel that person, right? Or even James Bond. James Bond has a certain way that he walks and talks. And there's so many people that play James Bond, right? With 6 or 7 people, however it is. But you never go, oh, that doesn't feel like James Bond. They all have that James Bond walk. Because what have they done? They've really moved their awareness into that area of the mind, and they started to feel the character. How he sits, how he talks, and the little things that Bond does, how he adjusts his coat. And then you forget that that person is playing James Bond. And you look at that person and go, what's Bond? And that's really what it is with affirmations. You're trying to change your energy in your mind to match what it is you want. And when those two things are vibrating at the same frequency, then you attract it. Energy, frequency, vibration. Put all the energy in one place, you change the frequency of that energy to the frequency you want, and then you send it back out again. And that's something that's never taught. And I always say to people, life is a manifestation of where you invest your energy. Whatever you put energy into will start to manifest in your life. So energy, the best way to look at energy is to look at energy the same way you look at water. So if I took a watering can and watered a garden bed, would the weeds grow or the flowers grow? Both, right? Yeah. Because water can't tell the difference between the weeds and flowers. Energy is the same way too. Whatever I put energy into will grow. If I put energy into something negative, it will grow. If I put energy into something positive, it will grow. Energy has no ability to discriminate between positive and negative. Whatever I put energy into will grow. So your life is a manifestation of where you put your energy into, where you invest your energy. So the more energy you invest into something, the more it will
How do you manage energy? So first step, stop hemorrhaging energy. Second step, conserve it. Third step, accumulate. Take that accumulated energy and you invest it into what you want to do in your life. You're not the mind, really. You're pure awareness moving through different areas of the mind. And I define concentration as my ability to keep my awareness on you for an extended period of time until I make a conscious choice to shift it to something else. So most people allow someone or something outside of them to control where their awareness goes. So I'm chatting with you, my phone goes bing, I pick it up, and my awareness gets right there. Another notification comes, my awareness goes there. I see a noise out there, I hear a noise out there, my awareness goes over there. So my ability to keep my awareness on you or something for an extended period of time is my ability to concentrate. So the first step in teaching your children to concentrate is really teaching them about the separation of awareness in the mind and not the mind, rather the awareness moving within the mind. And once they understand this, then you define to them what concentration is, which is keeping awareness on one thing at a time. So if you practice distraction all the time, 10 hours a day, what do you become good after 6 months? Distraction. Anybody practicing anything for 10 hours a day becomes really good. And the truth is, with 24 hours in a day, most people sleep, 7, 8 hours? So you're awake for 16. And out of the 16 hours, are they only practicing distraction for 7 or 8 hours? Only more like 13 or 14 hours a day practicing distraction. Imagine if you practice playing the piano 14 hours a day, 7 days a week. How good would you be after 6 months? If you look at most people out there, they have mastered the art of distraction. But they don't even know that. They don't even know. Concentration is at the very core of all human endeavors and success. So concentration helps us to look within, first of all, be concentrated long enough to identify the positive strengths and the negative weaknesses, build the positive, work to change the negative, and then in order to change the negative, it's going to take time, and we need to stay concentrated long enough to keep working on it, to keep massaging it, So anyone can do anything they want to if they concentrate. You can. Your greatest contribution to humanity is your own self-realization, your own enlightenment. As you uplift yourself, you uplift everyone else around you. Fast forward 50 years from now, or 55 years from now, I can look back on my life on my deathbed and go, what an amazing life. I would not have traded it for anything more. And that's the case for being concentrated, so that you can truly enjoy every experience in your life and be present. And being present means being able to be concentrated. Ultimately, we all want to be happy, right? I think that's a fair statement to say. I say happiness should never be pursued. Don't pursue happiness, but rather pursue a lifestyle where the byproduct of that lifestyle results in happiness. So I spend time with my family, I feel happy. Have a glass of wine with someone I like or love, I feel happy. Yes, anybody has to share anything after watching this video. क्या आ रहा है मन में, क्या हो, क्या है, क्या समझ आया? Actually, this video is trying to say we have mastered the art of distraction. And that is very true. Very true. 12 घंटे हम सिर्फ यही करते हैं. Most जो सोशल मीडिया में स्पेसिफिकली तो आपका टाइम वेस्ट होता है. अगर स्क्रॉल करते रहो तो वो चीजों को अपना टाइम प्रोडक्टिव कैसे करना है? Why can't we keep some time, 3 घंटे के बाद एक बार मोबाइल देखना है, क्यों हम 3 घंटे छोड़ दो ना? Why it is not necessary that every time we have to answer at that moment of time only. Exactly. वो क्या होता है, लोगों को एडिक्शन हो जाता होता है. रात को सोते सोते भी आधा घंटा वेस्ट सिर्फ फोन को ऊपर नीचे करने में होता है. Exactly. मैडम अर्लियर जो है ना, पहले अपना मूवी बनता था 3 घंटे का बनता मूवी पहला अभी बनता है 2 घंटे का, फिर आया सीरियल 20 मिनट का, अभी आया टिकटॉक आया 2 मिनट का, 20 सेकंड का. तो अपना जो पेशेंस है ना कम होते जा रहा है. फोकस ऑन अ थिंग, वी कांट सिट फॉर एनीवेयर फॉर मोर देन हाफ एन आवर. अगर आप पकड़ लेता है 3 घंटे की मूवी भी अब सोचते हो एक बारी कि भैया 3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, कौन जाएगा देखने? छोटा देख लो, आधा घंटा 20-25 मिनट तो कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगेन
वेरी ट्रू। मैडम एक सॉन्ग आया बीच में ना, तो फोन भी ओपन फोन एंड चेक किसने व्हाट्सएप किया, किसने क्या बात किया, चेक कर फोन ओनली, बीच में सॉन्ग भी आया तो। हाँ विक्रम, यू वांट टू से समथिंग? एक्चुअली मैंने अभी लास्ट में एक सेशन अटेंड किया था, तो उन्होंने एक सीक्रेट बताया था। उन्होंने कहा था 51 का रूल यूज करने का, यानी कि आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आप उसमें अलार्म सेट कर दो 50 मिनट्स के लिए। आप वहां से हिलेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई फोन ना कुछ। 50 मिनट्स के लिए उस काम को कंसंट्रेशन से करना है। उसके तो आपका जो लेवल ऑफ उस काम को करने का है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैंने ट्राई किया है थोड़ा बहुत, उसका रिजल्ट तो ठीक ठाक मिल रहा है। देखते हैं क्या कितने दिनों तक करती हूँ। वेरी ट्रू, दैट इज अ फैक्ट। यू नो हम जाते थे, विपिन सूरी जो हमारे मीटर थे वो यही कहते हैं पूरे दिन में ना 3 बार मोबाइल देखा करो, सिर्फ 3 बार। एक बार मॉर्निंग में उठते जब आप फ्री होते हो तो आप देखो, आधा घंटा लगाओ, आधा घंटा 20 मिनट, मतलब एक बार ही लगाना। उसके बाद 4 घंटे के लिए उसको भूल जाओ कि मोबाइल नाम की कोई चीज भी है। फिर 4 घंटे के बाद आपने आधा घंटा 20 मिनट लगाओ, 25 मिनट लगा लो। तो मेरे घर में भी ये मालूम है कि मैं इतने से इतने ड्यूरेशन तक नहीं हूँ। क्या हो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाए, किसी का बहुत अर्जेंट होगा तो कॉल आ जाएगा, मुझे दिख जाता है कि हाँ कॉल आया तो मैं उसको कॉल बैक कर सकता हूँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। देन यू कीप अ सेटअप, दैट इज योर बॉडी सिस्टम, जो आपका वो आपके कंट्रोल में रहता है, हर चीज आपके कंट्रोल में रहती है। देन यू डू इट फॉर द सेम फॉर द नाइट ऑल्सो। सोने से पहले या 7 बजे या 8 बजे, 8 बजे के बाद कहते मैं फोन को उठाता ही नहीं, जो आता रहे कॉल ना आता रहे, किसी का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बिकॉज हमारे यहाँ अंदर ये है कि नहीं, वी आर 24/7 अवेलेबल। मेरा वाकई सब में जब वैसे आता मैं तो जवाब देती रहती हूँ, आता रहता है, मेरा भी ऑन रहता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग। इसको कुछ करना पड़ेगा इसका भी। नहीं यही चीज है, मतलब क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर था जिसमें वेयर इज अनमोल। बोलो। आपका एक जवाब था इस वीडियो में। बोलो। You asked me one thing once upon a time and this was the answer. हाँ वो जवाब मुझे 2-3 दिन सॉरी पहले ही मैंने ढूंढ लिया था। वो एक्टर वाला जवाब था, मुझे पता है वाइब्रेशन वाला। वो जवाब मैंने एक्चुअली खुद से ढूंढ लिया था 2-3 दिन पहले ही वरुण से, तो उसमें वो जवाब मेरे पास आ गया अपने आप। आई फिगर्ड इट आउट। चीज मेरे को मतलब थोड़ा सा नहीं डिफरेंट है, सेम ही बात है। वाइब्रेशन में ना एक चीज और थी which I figured it out on myself. I don't know if my guess is wrong or right. See, पहले ना मैं थोड़ा बिलीव नहीं करता था इस बात में कि रामायण में जैसे हम बात करते हैं ना, वो मेरीच था, मतलब या कोई भी गॉड, और वो ना वो हिरन बन गया फॉर एग्जांपल, रामायण में था ना मरी। मैं कहता था यार ये बेकार की बात, मतलब इट्स नॉट दैट आई डिडंट बिलीव इन, बट ये पार्ट जो है ना मेरे को लगता है यार ये क्या पॉसिबिलिटी है। पहले आफ्टर अंडरस्टैंडिंग वाइब्रेशंस मुझे लगता है व्हाई नॉट, ये पॉसिबल है भाई। वो उसकी हिरन की वाइब्रेशंस में अगर इस तरह से आप आपको एक आपके अंदर एक विद्या है या आपके अंदर एक टैलेंट है या आपने तपस्या करके जाना है कि आप उस हिरन या किसी भी जानवर की वाइब्रेशन में टैप इन हो सकते हो, तो क्यों नहीं आप, यू विल लुक लाइक अ हिरन, यू नो, यू कुड वर्क लाइक अ हिरन। सेम चीज मुझे लगती थी महाभारत में, जब वो जो भीम का बेटा होता है घटोत्कच, है ना, वो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार वो बंदा पता नहीं कुछ दिनों के लिए लोग रुकते हैं और वो 20-21-22 साल का हो जाता है, राज्य संभालने लायक हो जाता है, और ये तो भाई अभी इनकी तो उम्र कुछ बड़ी ही नहीं है। अब मुझे लगता था यार ये क्या बेवकूफी की बात है, मतलब सॉरी बट पहले मुझे ऐसा लगता था। आज मैं समझ सकता वाइब्रेशन, तो मेरे को समझ में, मैंने कहा यार इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वाइब्रेशनल हो, चाहे डीएनए लेवल पे हो, आपका डीएनए इतना फास्ट, मतलब कोई डीएनए ऐसा है, यू नो, जब यू नो भीम का उस कौन थी वो हिडम्बा, उसके मतलब जो डीएनए था हिडम्बा का, वो इतना फास्ट पॉपुलेट होता था कि वो उसका जो बच्चा या बेटा हुआ वो इतनी जल्दी में वो इतना बड़ा हो। तो दैट इज पॉसिबिलिटी। पहले मैं समझता नहीं था इन चीजों को, अब मुझे लगता है जब वाइब्रेशनल समझना तो यार एनीथिंग इज पॉसिबल, तो इवन दिस इज पॉसिबल, नाउ आई अंडरस्टैंड दैट। वेरी ट्रू। सो बेसिकली फाउंडेशन अब आपकी रखी जा चुकी है, अब इसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो, सारी आपको टूल्स सिखा दिए गए हैं, सब कुछ है। अब आपको कैसे इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में करना है वो आपको डिपेंड करना है, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड, दैट इज आल्सो वाइब्रेशन, यू नो।
सो व्हेन योर वाइब्रेशन मीट्स द वाइब्रेशनल जो आपकी मैनिफेस्टेशन की है, तो ऑटोमेटिकली हम लोग अमोल सर की क्लास में जाते हैं, मॉर्निंग में हमारी 5 से 7 क्लास होती है। तो अमोल सर हमारे से ना मेडिटेशन कराते हैं एंड देन हम अपने ड्रीम्स लिखते हैं। ड्रीम्स लिखने के बाद फिर एंड विजुअलाइजेशन होती है कि आप वो सच हो गया ड्रीम। अब वो जब विजुअलाइजेशन हो गई, सच हो गया ड्रीम, देन ही सेज नाउ इट इज द टाइम टू सेलिब्रेट कि सच हो चुके हैं ड्रीम। अब आप जब आपके ड्रीम सच हो जाते हैं तो आप क्या करते हो? डांस करते हो, कूदते हो, खेलते हो। एंड एवरी डे he takes us to that level and then we celebrate and everybody dance और सब डांस करते हैं। तो every day we are raising our vibrations to that vibrations की जो हमारे सपनों के vibrations है। तो जब हमारी vibrations raise होके क्योंकि कोई टेंशन नहीं, कोई हमने वो अचीव कर लिया है। This is 31st December, we have achieved the goals that we wanted। अब हम स्टेज पे खड़े हैं, शेयर कर रहे हैं कि हमने ये किया, एंड देन वी डांस लाइक मैड, यू नो। फिर वो गाना लगता है, हम सब डांस करते हैं, एवरीबडी डांसिंग। सो वी हैव गॉट अराउंड 223 पीपल इन द मॉर्निंग। अमोल सर का मजा ही आ जाता है, मतलब सब डांस कर रहे होते हैं, उसमें बच्चे भी, बड़े भी, जैसे मर्जी एज के सब डांस कर रहे होते हैं। इट्स अमेजिंग यू नो एक्सपीरियंस ओवर देयर। तो बेसिकली आपका वो वाइब्रेशन तक जाना, मेरी एक और डिसाइपल थी जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे उसको सिखाया था, क्योंकि जब मैं तब थी तो मैं काफी सेशंस लेती रहती थी अपनी फ्रेंड सर्कल का, उनका, तो वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थी मेरे से। तो उसने कहा मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए। तो मैंने कहा तो तुमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो व्हाट शी डिड वाज, उसने अमिताभ बच्चन की फोटो के ऊपर एक बैक फोटो लगा दी, मुझे अमिताभ बच्चन ऐसा चाहिए, मुझे शाहरुख खान जैसा रोमांटिक चाहिए, मुझे ऋतिक रोशन जैसा हैंडसम चाहिए, समथिंग समथिंग डांसर चाहिए, समथिंग कुछ उसने वो सारी फोटोग्राफ्स बना के उसकी वीडियो बना, दिन रात उसको देखती रहती थी। एंड व्हाटएवर पार्टनर शी गॉट वाज लाइक दैट ओनली। तो क्योंकि दिन रात वो सोचती थी वो मेरे साथ ही है और मेरे साथ ही हम घूमने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, पता नहीं कितने घंटों वो सिर्फ सपनों में ही रहती थी। तो मुझे बाद में पता चला कि शी इज लाइक दैट ओनली। तो दैट इज हाउ द मैनिफेस्टेशंस हैपेंस। वो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सपने, मुंगेरी, यू फेक इट टिल यू मेक इट, यू फेक इट टिल यू मेक इट। आप फेक होते रहो, मतलब जो आप चाहते हो, आपकी वाइब्रेशंस वहां तक कैसे पहुंचेंगे? जब आप बहुत खुश होंगे, जब आपके दिमाग में कोई और फालतू बात नहीं होगी, आपने कहा नहीं मुझे मिल गया, वाओ दिस आई गॉट इट, आई वाओ वाओ वाओ, मतलब आपकी एनर्जी बहुत वहां तक मैच कर गई। तो ऑटोमेटिकली कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड मैच कर जाता है, तो मैनिफेस्टेशन होगी। तो this is the way, you know, the things go, and it is up to us ki how fast we can do it। एक पल में दुनिया चेंज होती है, एक पल में। the moment if manifestation has to happen, it will happen। कोई तीसरा बंदा आके उसको मैनिफेस्ट करके चला जाता है, you never know। so keep giving gratitude, keep doing those things। okay, so let us do one activity, scan your yesterday और उनमें से 3 ऐसे मोमेंट्स निकालो जो बेस्ट मोमेंट्स थे कल के, और आप उनको ग्रैटिट्यूड दोगे। कम ऑन, जस्ट कल पूरे दिन में क्या हुआ था, मॉर्निंग में जब उठे उसके बाद से लेके रात तक, क्या ऐसे बेस्ट 3 मोमेंट्स थे जिनको आप ग्रैटिट्यूड दोगे आज की डेट में? आज सुबह से नहीं कर सकते? आज सुबह से शाम तक से कर लो, अभी कर लो, तभी कर। मेरे फ्राइडे के सारे ट्रेड्स पॉजिटिव में चले गए क्या? आज मंडे को। तो सारे मोमेंट्स हो गए तेरे ग्रैटिट्यूड के। तो और वो जो ग्लैंडमार्क फार्मा था ना, अंजना मैम ने कुछ ज्यादा जल्दी एग्जिट कर था, वो भी प्रॉफिट में गया है आज, उसका स्टॉप लॉस हिट होने था। मुबारक हो भी अंजना, मुबारक हो सुजाता। मैंने पीडी लाइट खरीदे आज। गुड गुड गुड। अब मैं रखूंगी दबा के। वो अच्छा स्टॉक है, वो तो क्वालिटी ब्लू चिप है वैसे भी। We can wait। हाँ नो, यू तेरे मैसेज के बाद ही लिए थे मैंने। मेरे लिए तो ये हुआ कि बिकॉज ऑफ माय हेल्थ थोड़े दिन से मैं काफी परेशान चल रही थी, आपको पता है वो एलर्जीज के कारण ना। तो आज सुबह जैसे मैं रात को 2:30-3 बज गए थे मुझे सोते हुए, बट आई वेक अप एट 7। मैंने वो एफर्मेशन वाला भी किया, सारा कुछ अपनी मेडिटेशन करके। उसके बाद मैंने अपने वही
मेरी ये 3-4 दिन ये मिस हो गया था बीच में, ये सारी जो हम सुबह लिखते हैं सारा कुछ। तो आज आई स्टार्टेड, मैंने अपना दोबारा से वो शुरू किया। और मैं अपने में सबसे सबसे अच्छा जो चेंज आज एक्चुअली, मैं और जसकीरत वाज वेरी अपसेट टुडे। कुछ उसके जो सिबलिंग्स के साथ वो ना एक्चुअली हर चीज को बड़ा ज्यादा दिल पे लेके वो चीज सोचती रहती है और वो परेशान होती रहती है। तो मैंने आज उसको बोला, तो उसने नानी को फोन करके वो रो रही है, आप आ जाओ जल्दी से। वो तो मम्मा को लगा शायद मैंने डांटा है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं कहा है, वो थोड़ी अपसेट है, कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक करती हूँ। मैं उसके गई पीछे रूम में, तो मैंने उसे बोला, शी वाज लाइक कॉन्टिन्यूसली क्राइंग, वो रो रही है, वो ऐसे उसने किया ऐसे। मैंने कहा क्यों दूसरों के बारे में सोच के अपने आप को खराब कर रहे हो? रो आप रहे हो, तबीयत आपकी खराब हो रही है, परेशान आप हो रहे हो। मैंने कहा जस्ट डू वन थिंग, पेपर पेन लो और इस पे जितना गुस्सा सारा लिख दो। वो करवा के मैंने कहा इसको बर्न करके ना इसको पानी में बहा दो। थोड़ा उसको थोड़ा फर्क पड़ा उस चीज से। फिर उसके बाद मेरे को कहती ये सारी चीजें ऐसे, फिर वो मेरे से फिर उसने कामली मेरे से सारी चीज डिस्कस की कि कैसे ये कैसे। तो मैंने कहा बेटा बात सिर्फ इतनी है कि अब मुझे ये समझ आ गया है कि हम चाहे जिस मर्जी को बोल दें, कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। पहली बात, उसको पता भी हो फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो हमने क्यों किसी के लिए नेगेटिव सोचना है? जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दो, हम अपनी लाइफ में खुश रहें, हम अपना ठीक रहे। जिस चीज के लिए हमारे पास भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, जो हमारे पास हम जिन चीजों से ब्लेस्ड हैं, हम उस चीज के लिए क्यों नहीं बाबा जी को थैंक करते? आप वो चीजें, नेगेटिव चीजें छोड़ दो सारी, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो। आप पॉजिटिव सोचो कि ठीक है हमारे पास ये सारी चीजें हैं, आप इन चीजों के लिए अपने आप माइंड को कंसंट्रेट करो, आप इन चीजों पे कंसंट्रेट करो। आप थैंक यू हो बाबा जी का कि हम फिर भी बहुत अच्छे बैठे हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास सब कुछ है, आपके पास इतनी सारी चीजें हैं। तो इसके लिए वो थोड़ा सा, उसके बाद उसका माइंड थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा अपना वो खुश हुई। फिर उसके बाद हमने बातें की, वो नॉर्मल आ गई। फिर उसने नानी को भी कॉल करके ठीक तरह से बात की कि मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, आपको मिस कर रही थी, आप आ जाओ जल्दी से। वो कहते मैं आ जाऊंगी। तो ये चीजों का एक ये हुआ। और इसके साथ मुझे अपने आप में ये फर्क लगा कि मैं अब उन चीजों के लिए अपने आप को परेशान नहीं करती। अब कहते हैं ना, एक दिमाग उस चीजों से काफी ऊपर उठ गया है कि अब वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। अब मेरे को अपनी शांति, अपने दिमाग की शांति, ये चीजें सबसे पहले है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है, मेरी मम्मा ठीक है, और जो भी है जितना भी है और भी आएगा, आई नो, सबके लिए मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। बस यही कि हाँ बाबा जी को थैंक यू करो, यूनिवर्स को, गॉड को थैंक यू करो, यूनिवर्स को थैंक यू करो। और हमारे पास और भी बड़ी सारी अच्छी चीजें आ रही हैं, आप उसको बस सोचो, अच्छा सोचो ताकि हमें अच्छा मिले, बस। गुड, दैट इज द वे टू गो। ग्रेट अचीवमेंट फॉर लाइक, आज जो मैंने थोड़ा सा जस के साथ उसको भी थोड़ा ठीक किया ये सारी चीजों पे, तो मेरे लिए आज सबसे ज्यादा ये ग्रेट अचीवमेंट हुई कि हाँ जो very nice, very nice. All of you have done, Anmol done, Nitesh done, wonderful. All of you done the exercise? Yes ma'am. Great, wonderful. So this is what the exercise was. Again, self-love, make self-love as the first priority in your life. If you really want to go ahead, if you really want to make your own brand, if you really want to be focused, concentrated, just be focused on your own self. If you groom yourself, automatically वो confidence, वो सब कुछ आएगा। उनको मैंने mirror exercise भी बोली थी, let them do the exercise also. Just कीरत को बोलो exercise करेगी बहुत ज्यादा, so that will be really nice. उनको मैंने लिखवाया भी है कि क्या बोलना। हाँ जी। So that is what, and then it is very important. Please don't leave mirror exercise at all. बहुत जरूरी है हम सबके लिए, बिकॉज हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट चल रहा है, जो चीजें चल रही हैं, उसके लिए ये बहुत ज्यादा ग्रेट। सो फाइनली कल पहली जो हमारा वीडियो गई है वो मैजिकल जर्नी के नाम से गई है, एंड द चैनल इज ऑन। आप एक बार जाके देख सकते हैं, उसका लोगो भी चेंज हो गया, वो सब है। सो दिस इज एब्सोल्युटली ऑन। कांग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। बहुत अच्छा नेम लगा मुझे। अच्छा मोनिका, वो जो सुपर जो तुमने आपने जीनियस वाला सुपर लेसन था, उसमें कमेंट डिसेबल कर दिया है। कमेंट डिसेबल कर दिया है? मैं एक बार चेक करूंगी। कमेंट क्यों डिसेबल कर दिया है? पता नहीं, मैंने सोचा आज चलो मोनिका को सरप्राइज देते हैं,
कमेंट लिखते हैं, पता लगा कमेंट यू रिसीव। अच्छा, मैंने पता नहीं चला होगा। मैम उसमें सेटिंग्स में कुछ आपने किड्स के लिए किया है क्या कुछ? संडे को क्लासेस होती है ना, तो कल उनकी फर्स्ट क्लास थी, तो वो मैंने अपलोड किया। अच्छा, एंड देन उस क्लासेस के लिए भी मैंने मैजिकल जर्नी ऑफ सुपर लर्नर्स, ये उनका वो कर दिया है मैंने, ताकि उनका ये सीरीज जो चलेगा मैजिकल जर्नी ऑफ सुपर किड्स कर सकते हो आप, सुपर किड्स, सुपर लर्नर्स। किड्स जो होता है ना, किड्स इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर चिल्ड्रन, यू नो। किड्स जो होता है ना, कहते हैं अनमोल, बहुत भी कहते हैं हैं? इसके 5 बच्चे कहते हैं 5 साल के बच्चे। गोट के नहीं, गोट के बच्चे को किड कहते हैं। नहीं। हाँ, इसलिए इन एक्चुअल लैंग्वेज, मतलब हम लैंग्वेज के अंदर किड्स इज नॉट अ राइट वर्ड फॉर यूजिंग द फॉर चिल्ड्रन, यू नो। इसलिए हम अपने जितने भी स्कूल के प्रमोशंस होते थे उसमें हम किड्स नहीं डालते थे, सो वी डोंट यूज किड्स कायदे से। नॉर्मल लैंग्वेज में हम सब यूज करते ही हैं, तो इसलिए मैंने सुपर लर्नर्स कर दिया, मैजिकल जर्नी ऑफ सुपर लर्नर्स। तो सुपर लर्नर्स के नाम से उसका वो है, और पहला पेज उनका जो थंबनेल होगा वो बनेगा जीनियस वाला। वो तो बन गया। हाँ, वो तो बन गया। उसमें कमेंट इनेबल कर दो। मैं अभी कर देती हूँ, अभी तो हम कमेंट डाल दें फटाक फटाक। कल फिर मैंने सबसे शेयर किया था। अभी एक अब कल लास्ट क्लास है हम लोगों की, बट एज ऑन डिमांड मेरी ऐसे जैसे बात हो रही थी, तो मैं यतीश सर, आप कल थोड़ा सा टाइम दे सकेंगे सेशन के लिए? क्योंकि आपने एक बीच में बोला था कि आपने कुछ रिसर्च कर रखी है बच्चों की, जो अब्रॉड जाने वाले बच्चे, समथिंग कुछ। हाँ। तो अगर आप सबसे शेयर करेंगे तो दैट विल बी रियली ग्रेट। ठीक है, वंडरफुल, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग टाइम। तो कल थोड़ा सा टाइम अपना निकाल देना। और अब हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट होगा मंडे से, एंड पेड बैच होगा। एंड कुछ प्रोटोकॉल्स रखे हैं मैंने नए बैच के लिए। प्रोटोकॉल्स ये हैं कि एग्जैक्ट 5:55 पे सेशन विल बी ऑन, ठीक है, और 6:10 तक लॉक हो जाएगा, क्योंकि बार बार आना जाना वो डिस्ट्रैक्शन होता है सभी के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, अगर किसी को आना है तो पहले मुझे एडवांस बोल दे, वो बेटर रहेगा, रादर देन कि एकदम से बीच में बना जाए, यू नो। एवरीबडी विल एग्री टू दिस, एंड हम वही 30 का बैच रखेंगे। मुझे ज्यादा बैच नहीं करना, मुझे एक एक बंदे के जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। So that is what it is. And every Thursday there will be a practical session जिसके अंदर आपको मैं यहीं पे, आप जैसे मोबाइल पे काम करते हैं, मैंने प्रॉपर गूगल फॉर्म टाइप बनाया है उसके अंदर, उसी के अंदर आप अपना आंसर लिखोगे उसी के अंदर, ताकि जिनके जो जो एरियाज हैं उस प्रैक्टिकल सेशन में वो सेशन के अंदर ही रिजॉल्व होंगे। क्या स्टेटमेंट बोलनी है, कैसे बोलनी है, इसी डिस्कशन में होंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल सेशन है जिसमें हम अपने कुछ पर्सनल चीजें भी शेयर करेंगे। सो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, इट हैज टू बी यू नो इन सीक्रेट। मतलब हमें किसी एक दूसरे को उस तरह से नहीं करना, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट से देखना है कि दे आर शेयरिंग इट विद ईच वन ऑफ अस, एंड वी ऑल आर टुगेदर एज अ कम्युनिटी टू सपोर्ट ईच एंड एवरीवन। तो अभी मैं प्रेयर करती थी और उस बंदे को पता था, बट अब अगर हम प्रैक्टिकल सेशंस कर रहे हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो मौका, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे वो मनी का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे किसी चीज का भी, वो आता ही है। एंड वी विल बी लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। और कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने एक्स्ट्रा और भी बनाई है, जैसे कल मैंने आपको क्वांटम जंपिंग की बात करी थी। नितेश सर, आप क्या कह रहे थे क्वांटम जंपिंग? यू हैव सीन दैट वीडियो? या इट्स नाइस, अच्छा है। हाँ, वो बेसिकली इट इज जंपिंग फ्रॉम व्हाटएवर डायमेंशन यू आर लिविंग इन इनटू द डायमेंशन ऑफ द अदर व्हिच यू रियली वांट टू अचीव। उसका एक डिफरेंट तरीका है, उसका एक डिफरेंट तरीका है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ क्वांटम, बट दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल। मैनी वे द बर्ड गोल्डमैन का है ये कॉन्सेप्ट, एंड उसकी अगर सक्सेस स्टोरी देखो तो उसने क्वांटम जंपिंग से सारा अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया है।
and he has contributed in many people's life also. मतलब जो एक मेड थी, एक उसको इतना बड़ा बंगला अचीव कर पाई, या जो भी थोड़ा सा ऐसे था. तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इट इज नॉट अबाउट कि हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे जैसे सत्संग वाली बात नहीं है. यहाँ पे आके हमने सब, we all are action takers and we all are here to give performance, we all are here to show the outcome. So we are committed to our sessions. मतलब मजाक नहीं समझ के, एक सीरियस मैटर समझ के अगर हम सीधा अपना आप को कमिट कर दे 28 डेज के लिए, हमारी सबकी जिंदगी पलट जाएगी. आई प्रॉमिस यू, सबकी जिंदगी पलट जाएगी. एंड दोज हु आर रिपीटिंग, वो तो चलो है सो है. जो हमारे नए बंदे आ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगी जो हम नए बंदे लेके आए उनको हमें ज्यादा शेयरिंग के लिए टाइम देना है रादर देन, क्योंकि हमें फिर भी कुछ आता है, हम फिर भी वो समझ सकते हैं. हमें उनको सपोर्ट करना है उठा तरह से, क्योंकि स्टार्टिंग में सब बोल नहीं पाते, स्टार्टिंग में शेयर नहीं कर पाते. So we all are going to support that new member so that they feel ease to talk about. और किसी को कोई सजेस्ट करना है अगले सेशन के लिए, तो मेरे दिमाग में जो बात थी मैंने शेयर कर दी. इफ यू वांट टू सजेस्ट समथिंग एल्स प्लीज, क्योंकि ये सब फीडबैक मुझे आप ही लोगों से मिले हुए हैं और आप ही लोगों के लेके मैं ये आगे लेके चल रही हूँ. बिकॉज आई वांट एवरीबडी टू बी कंफर्टेबल, एवरीबडी टू बी लाइक कि अपने समझ के आए कि हमारा अपना सेशन. मैम क्या नाम बताया आपने क्वांटम फिजिक्स का? नाम क्या बताया आपने? बर्ट गोल्डमैन. बर्ट गोल्डमैन. BERT ना? बर्ट ना? BURT. अरे ब्रो गूगल पे लिखोगे ना क्वांटम फिजिक्स, उसी का नाम आएगा. उसी का नाम आएगा. डोंट वरी. So मैम न्यू सेशन कब से स्टार्ट होगा? बिकॉज मुझे अपनी कजिन को बताना है. बेटे मंडे से 15 सैटरडे 15 तारीख को भी हम सेशन नहीं रखेंगे. 15 अगस्त है तो चलो छुट्टी बनाओ. संडे एंड मंडे से विल स्टार्ट. ऑलराइट थैंक्स. मैम फी कितना है मैडम? हाँ जी मैम फी कितना है? फीस कितना है? 500 इससे ज्यादा नहीं है. ऑलराइट. which we will be getting a workbook in which you are getting practical sessions. और बीच में मैं एक मास्टरमाइंड की क्लास रखूंगी. जो लोग मेरे अपने मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए फ्री होगी, बाकियों के लिए मैं अलग चार्जेस रखूंगी. मास्टरमाइंड क्लास मींस we will be revising the complete magic tools and techniques in one go for 4 to 5 hours. उन लोगों के लिए जो पूरे 28 डेज नहीं कर सकते, बट इन वन डे वो के लिए उसका भी वो भी मैंने 16th अगस्त का सोच रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा फाइनल नहीं किया. I'll let you know by tomorrow or day after. ओके मैम एक चीज थोड़ा सा था मुझे कि हम क्या थोड़ा क्लास का टाइम पहले कर सकते हैं? बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस माय एनी क्लास. मेरी 7 बजे ना दूसरी क्लास होगी. तो क्योंकि सबका सजेशन तो 6 से 7 था. अब आप एवरीबॉडी प्लीज पोल ऑन द चैट बॉक्स कि क्या टाइम आप लोगों को थोड़ा सा पहले कर लें, लाइक अगर 5:30 से कर लें स्टार्ट, तो क्योंकि मेरी 7 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट होती है, तो उससे पहले, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस माय एनी सेशन लाइक. हाँ जी, सजेशन सब लोग बताओ. मैम नॉट अ इशू. नॉट एन इशू. अच्छा जी. नॉट एन इशू या मैम, इट्स नॉट एन इशू. सही है, थोड़ा जल्दी कर भी सकते हैं क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि सबका काम हो जाता है. सब अपना चैट बॉक्स में डाल दो, सब अपना क्या शूट कर रहा है. मोनिका दैट्स फाइन. इट्स फाइन. तो क्या 5 बजे रखें, 5:30 रखें? मैम 5:30 will be good. 5:30. Okay. Yes. All of you please put it on the chat box 5:30. 5:30 will be good, क्योंकि फिर शेयरिंग भी होती है और हम शेयरिंग से भी बहुत कुछ सीखते हैं. हाँ जी, अब मैं देख लेती हूँ कौन क्या. प्लीज फ्री फील टू राइट. एक्चुअली सब कुछ तो शेयरिंग से ही होता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस से पता चलता है किसने क्या प्रैक्टिस किया. ये 5:30 मोनिका अच्छा है यार. 7 बजे घूमने का टाइम तो भी ठीक है यार. ये लेट हो जाता है ना, अंधकार हो जाता है 7:30. हाँ नहीं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा. सही कह रहे हैं, मतलब मैं भी यही सोच रही थी, इन्होंने सही बोला है. सही है, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ चलो, गुड है. थैंक यू मैम. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. क्या लिखा है तेजस्विनी ने? बोल भी तो सकती है. मैनिफेस्टिंग माय ड्रीम पर्सन विद द ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड ऑफ मोनिका मैम, सुपर 30, स्प्रेडिंग द इंस्पिरेशनल वीडियो and the responses I got positively from my near dear ones that I could share with ma'am. Continuously working and finishing few tasks from 2 AM to 4 AM.
क्या मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहना हाँ मैम, आपने आज का टास्क दिया था ना, तो मैं एक्चुअली बोलना चाह रही थी, बट मेरे को तब से मेरा थोड़ा साइलेंट हो गया। मैं बोल नहीं पा रही। तेजस्विनी और साइलेंट, सबको कुछ सुनाई दिया? तेजस्विनी एंड साइलेंट, माय गॉड, नो मैच। नहीं मैम, आज सेशन के सामने से ना मैं थोड़ा, आज क्या है, थोड़ा साइलेंट हो गई हूँ। साइलेंट इसलिए हो गई है नहीं कि वो 2 दिन से तो क्लास में नहीं आई, साइलेंट रहना ही पड़ेगा ना तुमको। हाँ, तो मैं पीछे से वैसे सब कुछ करके आ रही हूँ, और आज का टास्क देख के मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इट इज रिवाइजिंग मी ऑफ यस्टरडे। और कल है क्या? अच्छा भैया, इसको अपना ड्रीम बॉय मिल गया और कांग्रेचुलेशंस कर दो सब। Congratulations. वो भी Congratulations. पूरा plan Congrats. Where's the That was party? fast. Amazing. Yeah. आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। मतलब आप सबकी दुआएं थी, सब कुछ हो रहा है अच्छे से, और आगे भी जाके बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच। और मेरे को यही लग रहा था कि कल का भी क्लास अटेंड नहीं किया, परसों भी नहीं किया था, लेकिन आज का जो टेक्निक सुना है उसके बाद मेरा तो आई ओपनर हो गया, क्योंकि पूरी चीजें मैंने रिवाइज करने को मिला। क्योंकि आज शाम को ये क्लास अटेंड करने से पहले मैं बहुत ही डल और ये थी, तो वही बात है। यही तो मैजिक है इस क्लास का कि यहाँ पे आके सारे एनर्जाइज हो जाते हैं। हाँ वो है। मतलब अभी आज आई तो मेरे को ठीक लग रहा है, 2 दिन से जो नहीं आई। और आपने स्टार्टिंग में बोला था एनी टाइम यू मिस अ क्लास यू हैव टू गो बैक 3 days एंड डू इट। तो मैं जो एक्टिविटीज है वो कर रही हूँ। मैम मुझे टाइम का पूछना था, मतलब कि हम लोग जैसे कि ना, जैसे डॉक्टर जेपी सर ने भी लिखा है कि मतलब 1 घंटे में हम शार्प खत्म कर लें, तो वो भी हमारा मतलब जैसे कई बार बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। That will be done. That I'll make sure that it will be between 1 hour. ताकि हम ना टाइम से फिर खत्म कर लें, ताकि हमारा कुछ मिस ना हो। हाँ ठीक है, बिकॉज जब हमारा एक प्रैक्टिकल सेशन हो जाएगा ना, उसमें फिर हमारा काफी कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो हम सिर्फ सेशन उसी में होगा तो हमारी एक्टिविटी सब उसी में हुआ करेंगी, तो दैट विल बी डन। और वो जो वर्कबुक मैं दूंगी, वर्कबुक विल बी गिवन एट दैट मोमेंट ओनली, उसी में आप करोगे और आप ही के मेल आईडीज में आपको मिल जाएंगी, सो दैट इट इज हम चाहते नहीं है हमारे जो अपने ग्रुप की जो सीक्रेसी है, जो इतनी मेहनत करके मैं बना रही हूँ, हम लोग बाहर बजे, ये हमारे लिए है और हमारा ही ग्रुप बाइबल बन के रहेगा हमारे उसके लिए। ठीक है, so this is what I am taking it on. Great, thank you so much for creating such beautiful things. And so now tomorrow's exercise, 10 blessings, top 3 desires, good things that happened yesterday. आपने कल का क्या क्या हुआ था वो लिखना है और प्रैक्टिस करनी है अपने, अब वही पूरी लिस्ट बना के और उनको ग्रेटिट्यूड शो करना, क्या क्या अच्छी चीजें हुई आपके, कल से देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, एंड मैजिक रॉकर रिचुअल तो सबको बताइए। थैंक यू सो मच एंड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू दीदी। Thank you. Thank you ma'am, thanks so much. Thank you ma'am, thank you. Bye bye. Thank you everyone. Thank you Thank ma'am. you each of you. Thank you ma'am. कल का भी है।